ضرب عزب کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ کہانی ان چہروں کی ہے جو معصوم دکھتے ہیں مگر اندر سے خون آلود ہوتے ہیں۔ قسط نمبر 1 نقاب زدہ لوگ۔ یہ فیصلہ ملک و قوم کے تحفظ کے لیے ہے۔ شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عزب آج سے شروع کیا جا رہا ہے۔ آرمی چیف کی آواز نیوز چینل پر گونج رہی تھی۔ فراز ارشد نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور ٹی وی اسکرین کو ٹک ٹکی باندھے دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں خبریں نہیں، چہروں کے پیچھے چھپے جملے پڑ رہی تھی۔ فراز کرائم رپورٹر تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ جب فوج سچ بولتی ہے تب بھی کہانی مکمل نہیں ہوتی۔ اس نے موبائل پر بریکنگ نیوز کا نوٹیفیکیشن کھولا۔ ہیڈ لائن: ضرب عزب بگنز، ٹارگٹ نارتھ وزیرستان۔ اس کے چہرے پر ایک پرانی زخم کی سی پرچھائیں اتر آئی۔ یہ صرف ایک آپریشن نہیں، شاید پہلی بار کچھ نقاب اتریں گے۔ دوسری طرف کراچی کے ایک لگژری ہوٹل کی 10ویں منزل پر ظفار آئینے کے سامنے کھڑا تھا، شرٹ کا کالر سیدھا کرتے ہوئے۔ پیچھے صوفہ پر ہانیہ نے لپسٹک ٹھیک کرتے ہوئے پوچھا، آج اتنی خاموشی؟ تم تو عام دنوں میں خود کو کنگ سمجھتے ہو۔ ظفار نے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا، لمحے بھر کو جیسے خود سے انجان ہو گیا۔ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ وہ جیت چکا ہے تب خدا خاموشی سے کھیل پلٹ دیتا ہے۔ ہنیا نے طنزیہ مسکراہٹ سے پوچھا، نیوز نے ہلا دیا؟ ظفار نے مسکرا کر کہا، آرمی نے ضرب عزب لانچ کر دیا۔ ہنیا نے ہنسی دباتے ہوئے کہا، فوج اپنا کام کرے، ہم اپنا کھیل کھیلتے ہیں۔ ظفار دریں اسنا: ایک متوسط علاقے میں مہیرہ اپنی بیٹی نیہا کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نیہا نے سوالیہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔ ماما، پاپا کب آئیں گے؟ مہیرہ نے نظریں چرا لیں۔ پاپا بہت دور چلے گئے ہیں بیٹا۔ دروازے پر ناک ہوا، باہر نائلہ کھڑی تھی۔ آ جاؤ۔ مہیرہ نے دروازہ کھولا۔ نائلہ نے نیہا کو دیکھ کر آہستہ سے پوچھا، نیوز دیکھی؟ ضرب عزب شروع ہو گیا۔ مہیرہ کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، ملک بدل رہا ہے نائلہ، لیکن میرے اندر کی جنگ ویسی کی ویسی ہے۔ رات کے ایک کونے میں ایک پرانی گاڑی کا ورکشاپ، جہاں ایک نوجوان انجن کے پیچ کھول رہا تھا، ہاتھ کالک سے بھرے مگر آنکھوں میں روشنی۔ کسی زمانے میں کچھ جان چکا تھا، کچھ سا چکا تھا، اب عام میکنک بن کر جینا چاہتا تھا۔ ٹی وی پر پھر سے فراز کی آواز لائیو پروگرام میں سنائی دی۔ ضرب عزب کا ہدف صرف پہاڑوں میں چھپے دشمن ہیں یا وہ چہرے بھی جو ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہمیں ہی بے خبر رکھتے ہیں؟ کیا نقاب صرف وزیرستان میں ہیں یا ہمارے عدالتوں، کاروباروں اور رشتوں میں بھی؟ اس کے آخری جملے کے ساتھ ہی آواز فیڈ ہوئی اور پس منظر سے ایک جملہ گونجا، نقاب زدہ لوگ ہر جگہ ہیں اور اب وقت ہے کہ وہ بے نقاب ہوں۔ نیوز اسٹوڈیو کی روشنیوں سے نکل کر جیسے فراز ارشد دوبارہ تاریکی میں آ گیا تھا۔ ٹی وی کی آواز بند، موبائل سائلنٹ، مگر دماغ میں لفظ گونج رہے تھے، کیا نقاب صرف وزیرستان میں ہیں یا ہمارے عدالتوں، کاروباروں اور رشتوں میں بھی؟ اسی لمحے دروازے پر ناک ہوا۔ جونیئر پروڈیوسر نبیل اندر آیا۔ سر، آرمی کی طرف سے ایک اسپیشل پریس بریفنگ ہے، صرف سلیکٹڈ صحافیوں کو بلایا گیا ہے، آپ کے لیے کال آیا ہے۔ فراز نے گہری سانس لی۔ منسٹرز انکلیو؟ نہیں سر، GHQ راولپنڈی۔ کیمرہ کٹ ہوتا ہے۔ دوسری طرف ظفار اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا مگر اس کی نظریں اسکرین پر نہیں بلکہ شیشے کی اس دیوار پر تھیں جس کے پار ہنیا کسی کلائنٹ کے ساتھ بیٹھ کر پریزنٹیشن دے رہی تھی۔ ظفار کے ہاتھ میں کافی کپ تھا مگر انگلیاں غیر محسوس انداز میں ٹیبل پر ٹیپ کر رہی تھیں۔ فون بجا۔ اننون نمبر۔ ظفار نے اٹھایا۔ وقت تیز چل رہا ہے ظفار صاحب، اور کچھ لون والے چہروں پر نقاب اترنے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم کون ہیں؟ کال بند۔ ظفار کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ وہ جانتا تھا یہ کال بزنس کی نہیں تھی، یہ یاد دہانی تھی اس پرانے راز کی جو اس کی فائل میں دفن ہے۔ پھر ہم کٹ کرتے ہیں۔
वजीरिस्तान के ख्याली पहाड़ों पर हेलीकॉप्टर उतर रहा है। बूट्स जमीन पर लगते हैं। कैप्टन हमद और उसकी यूनिट रात के वक्त एक खास कंपाउंड की तरफ बढ़ रही है। वायरलेस पर आवाज आती है, ब्रावो 1, you're clear to engage. Suspected target inside. कैप्टन ने हाथ से इशारा दिया और दरवाजा तोड़ने वाला सोल्जर आगे बढ़ा। दरवाजा टूटा, गोलियों की आवाज, एक ब्लैक बैग वाला आदमी पकड़ा गया। आईडी करो। सर, पाकिस्तानी नहीं लग रहा, डॉक्यूमेंट्स हिंदी में हैं, नेम भावेश। कैप्टन हमद ने जल्दी से कागजात लिए और कोड में HQ रिपोर्ट दी। इसी वक्त कराची की एक तन्हा गली में वही मैकेनिक लड़का वर्कशॉप बंद कर रहा है। एक शैडो उसके करीब आती है। तुम्हें याद है तुम कौन हो? मैं वही हूं जो भूल गया कि वो कौन था। तुम्हें दोबारा वही बनना होगा। नहीं, मैंने ये जिंदगी चुन ली है। जिंदगी नहीं चुनी जाती, इसे वापस बुलाया जाता है और तुम्हें बुलाया जा चुका है। महिरा के घर नाइला से एक पेपर देती है। ये डिवोर्स नोटिस है। तुम्हारा शूहर जफर अब हर लिहाज से आजाद होना चाहता है। महिरा खामोशी से नोटिस को देखती है। आंखों से आंसू नहीं, उसे सिर्फ एक ठंडी सांस निकलती है। वो आजाद हो गया नाइला। मगर मैं तो अब कैद हो गई हूं उस बेटी के चेहरे में जो हर रात उसका इंतजार करती है। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज। वजीरिस्तान में एक हाई लेवल सस्पेक्ट गिरफ्तार, रॉ लिंक होने का शबा। फराज GHQ की लॉबी में बैठा स्क्रीन पर नजर जमाए, फिर अपना पेन निकालकर नोटबुक में लिखता है। कहानी शुरू हो चुकी है और हर किरदार अपने नकाब समेत दाखिल हो चुका है, लेकिन जो बाहर से दुश्मन है उससे ज्यादा खतरनाक वो हैं जो नकाब पहनकर हमारे बीच में सांस लेते हैं। GHQ के कॉन्फ्रेंस रूम में रोशनियों की चमक और साए एक दूसरे से उलझ रहे थे। फराज अरशाद सामने स्क्रीन पर कुछ सर्वेलेंस फुटेज देख रहा था जिसमें वजीरिस्तान के एक सेफ हाउस से गिरफ्तार शख्स को ब्लैक हुड के साथ ले जाया जा रहा था। एक खफिया इदारे के ऑफिसर कर्नल समीर ने टीवी स्क्रीन पर इंगली रखी। ये आदमी भवेश नहीं, ये है जिब्रान सिद्दीकी, कराची से लापता एक तालिब इल्म जो इंडियन नेटवर्क के हाथों आइडियोलॉजिकली कन्वर्टेड हुआ था। फराज ने चौंक कर कहा, मगर ये तो एक आम सा लड़का था, सोशल मीडिया पर शायरी लिखता था। कर्नल ने गहरी नजर से जवाब दिया, आज का जंग बंदूक से नहीं, कीपैड और जहन के अंदर होता है। यही तो मॉडर्न वॉर है फराज साहब। दूसरी तरफ जफर अपनी BMW में बैठा डैशबोर्ड पर इंग्लिश से कुछ नंबर्स डायल करता है। कॉल पिक होती है। मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी जफर। तुमने समझा तुम्हारे बैंक अकाउंट्स हमेशा क्लीन रहेंगे? तुम्हारे कंपनी के बैक एंड में जो सॉफ्टवेयर तुमने हनिया के नाम पर लॉन्च किया उसमें से फंड्स की मूवमेंट देखी जा रही है। जफर ने सिगरेट सलगाया। तो क्या चाहते हो? मैं सब कुछ छोड़ दूं? नहीं, तुम्हें कुछ और एक्सेप्ट करना होगा। तुम्हारे लिए भी एक मास्क तैयार है। तुम्हारा नब उतरने नहीं देना। पहनाओ, मगर हमारी तरफ से। वर्कशॉप की गली में रात का सन्नाटा। वो नौजवान जिसका नाम अब तक जाहिर नहीं हुआ अपनी बाइक पर बैठने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, तुम भाग नहीं सकते, तुम्हारा फिंगरप्रिंट उस सेफ हाउस में मिला है। नौजवान ने आहिस्ता से पलट कर देखा। सामने खड़ा था एक 20 साला आदमी, सादा लिबास मगर आंखें तेज। तुम कौन हो? वो जो तुम्हें भूलने नहीं देगा तुम कौन हो। तुम्हारे अंदर अब भी वही आग जला सोल्जर सांस ले रहा है। नौजवान ने दबी आवाज में कहा, मैं मरहबा अली नहीं रहा, अब सिर्फ एक मैकेनिक हूं। मरहबा सिर्फ नाम नहीं, वो एक फाइल है जो अब खुलने वाली है और तुम उसके सेंटर में हो। महिरा ने आज पहली बार अपनी बेटी नेहा को स्कूल छोड़ने खुद जाना चुना। रास्ते में बिलबोर्ड पर जफर की कंपनी का एड लगा था, हैनिया टेक, योर ट्रस्ट, आवर पावर। महिरा ने गर्दन मोड़ ली। नाइला का फोन आया। तुम्हें जानना चाहिए, जफर का अब हनिया से सिर्फ बिजनेस नहीं, उसके फ्लोज में कहीं तुम्हारा नाम भी यूज हो रहा है। तुम्हें लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। महिरा की आंखों में एक नई चमक आई। मैं खामोश मां थी, अब जागती औरत बनूंगी।
न्यूज़ फ्लैश, ज़ारबी आज़ब के दौरान गिरफ्तार शुदा रॉ लिंक शख्स की अर्बन नेटवर्क की तहकीकात का आगाज, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हिस्सों में छापे। फराज ने माइक्रोफोन ऑन किया, टीवी पर इसकी आवाज़ अबशराज लाइव गई। अब मामला सिर्फ बारूद और बंदूक का नहीं रहा। अब खतरा वो हैं जो आपकी मेज पर बैठे चाय पीते हुए आपको ही खा रहे हैं। नकाब सिर्फ वजीरिस्तान में नहीं, नकाब अब हमारे बिजनेस कार्ड, हमारे चैरिटीज और यहाँ तक कि हमारे लव स्टोरीज में भी छुपे हैं। स्क्रीन धुंधला होता है और बैकड्रॉप में गूंजती है आवाज। नकाब ज़दा लोग हर तरफ हैं, मगर कुछ चेहरे बहुत जल्द बेनकाब होंगे। GHQ के बर्फ जैसे ठंडे कमरे में कर्नल समीर ने मैप पर 3 सर्ख निशानों की तरफ इशारा किया। ये 3 अर्बन लिंक्स हैं, कराची, लाहौर और रावलपिंडी। ये जिब्रान का नेटवर्क नहीं, ये इस नेटवर्क की शुरुआत है जिसने शहर के अंदर एक पैरेलल सिस्टम खड़ा कर रखा है। फराज ने नोटिस बुक बंद की और बेसाख्ता कहा, तो क्या हम ये माने कि वो जो टीवी पर नेशनल एंथम के वक्त हाथ दिल पर रखते हैं, इनमें से कुछ एनिमीज पेरोल पर हैं? कर्नल समीर खामोश रहा, फिर आहिस्ता बोला, जिस दिन हमने सिर्फ बॉम्ब से डरना छोड़ा, इसी दिन असल जंग शुरू हुई। जफर अपने ग्लास ऑफिस में एक डॉक्यूमेंट को बार बार पढ़ रहा था। पेपर पर लिखा था, नोटिस ऑफ इंक्वायरी, साइबर फ्रॉड अंडर हनिया टेक सॉफ्टवेयर स्ट्रीम। हनिया ने दरवाजा खोला। ये सब क्या हो रहा है जफर? हमें इन्वेस्टिगेशन टीम ने मेल भेजी है। जफर ने गुस्से से पेपर फाड़ा। ये सब किसी ने प्लान किया है, कोई हमसे खेल रहा है। हनिया के चेहरे पर शक का साया उभरा। या तुम ही वो हो जिसने सब कुछ प्लान किया? कंपनी तुम्हारी थी, मगर ट्रस्ट मेरा? जफर ने आंखें चला लें। कहीं ना कहीं वो जानता था खेल हाथ से निकल चुका है। वर्कशॉप में मरहबा अली अपनी पुरानी डायरी निकाल कर खोलता है। हर सफ़े पर कुछ तस्वीरें, कुछ अरबिक कोड्स और खून आलूद जुमले थे। एक खास सफ़ा पर लिखा था, तुम्हारा खून सिर्फ तुम्हारा नहीं, ये उस जमीन का कर्ज है जिसने तुम्हें छुपाया, तुम्हें चुप कराया और अब तुम्हें वापस बुला रहा है। दरवाजे पर दस्तक हुई। वही पुरअसरार आदमी दोबारा दाखिल हुआ। टाइम्स अप मरहबा, तुम्हें वापस जाना होगा। GHQ तुम्हें रीएक्टिवेट कर चुका है। मरहबा ने आहिस्ता से गर्दन हिलाई। तो क्या ये नकाब अब उतरेगा? नहीं, अब तुम दूसरों के नकाब उतारोगे। महिरा आज पहली बार अपने लॉयर के साथ FIA के दफ्तर पहुंची। एविडेंस बॉक्स में कुछ चेक्स, कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स और एक ओल्ड लैपटॉप था। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने देखा और कहा, यह केस साइबर फ्रॉड से आगे जा रहा है। हमें शबा है कि इस कंपनी को किसी बैरूनी नेटवर्क के लिए यूज किया जा रहा है। महिरा की आंखों में कुछ टूटा। तो वो सिर्फ मेरा नहीं, मेरी जमीन का भी दुश्मन निकला। न्यूज़ फ्लैश, multiple cyber traces linked to Karachi-based tech firm. Sources suspect international data leak. टीवी स्टूडियो में फराज ने लाइव प्रोग्राम स्टार्ट किया। जब बिजनेस का चेहरा रोशन हो और अंदर से वो स्याह हो, तो क्या हम अब भी सिर्फ बॉर्डर पर दुश्मन तलाश करेंगे या उन फेसेस की तलाश करेंगे जो टाई के नीचे एक मास्क पहने बैठे हैं? इसी रात GHQ के एक खफिया कमरे में मरहबा अली अपने पुराने यूनिफॉर्म को देख रहा था। साथ में फराज भी मौजूद था। कर्नल समीर ने फाइल खोली। ये हमारा अगला टारगेट है, जफर। इसने सिर्फ ट्रस्ट तोड़ा नहीं, बल्कि इसे बीज भी दिया। फराज ने नजरें उठाएं। अब नकाब सिर्फ इतरेंगे नहीं, उन्हें काट कर नीलाम भी किया जाएगा। स्क्रीन धुंधला होता है और बैकड्रॉप में वही आवाज गूंजती है। नकाब ज़दा लोग अब कहानी के मरकजी किरदार बनने जा रहे हैं और कहानी अब सिर्फ एक चेहरे तक महदूद नहीं रही। GHQ के कमरे में सख्त रोशनी जल रही थी। कर्नल समीर ने सामने खड़े मरहबा अली और अरमान सदीक को गौर से देखा। टारगेट ट्रेस्ड। जफर का पर्सनल डेटा लिंक ईरानियन NGO के साथ मैच कर चुका है। रॉ एजेंट रेहा दत्त पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है। अब वक्त आ गया है। मरहबा ने फाइल उठाई। पहली बार दुश्मन हमारे डेटा में दाखिल नहीं, हमारे लोगों में छुपा है। कर्नल ने सर हिलाया।
यही जंग का नया मैदान है। अब तुम्हारा काम सिर्फ शैडो में जाना नहीं, इस शैडो को काटना है। दूसरी तरफ जाफर अपनी कार में बैठा डैशबोर्ड पर एक कोड एंटर करता है। स्क्रीन पर एक हिडन पैनल खुलता है। लाइन सिक्योर। स्पीक। आवाज आई, रिहा पहुंच चुकी है, फेज 2 शुरू करो। फायरवॉल अंदर से खोला जाएगा। GHQ की डिजिटल लेयर हमारी पहली दीवार है। जफर ने सिगरेट सलगाया। मैं तुम्हारा दरवाजा बन गया हूं, लेकिन याद रखो दरवाजे बदल भी सकते हैं। एयरपोर्ट के बाहर रिहा डट ने सनग्लासेस उतारे। हाथ में NGO का ID कार्ड था। रिलीफ फॉर चिल्ड्रन डिस्प्लेस्ड बाय वॉर। एक लोकल स्टाफ ने खैर मुकद्दम किया। वेलकम टू कराची मैम, वीव सेट अप द प्रेस मीट टुमारो। रिहा ने मुस्कुराकर कहा, हम प्रेस से ज्यादा प्रेशर के लिए आए हैं। FIA हेड ऑफिस में महिरा खामोश बैठी थी। सामने पड़ा था एक लैपटॉप, कुछ चेक्स और वो फाइल जो जफर की कंपनी के फ्रॉड से जुड़ी थी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा, आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, आप की विटनेस हैं। महिरा ने कहा, मैं कमजोर औरत नहीं, उस आदमी का सच हूं जिसने मुझे बीच डाला। मरहबा और अरमान ने कराची के एक पुराने वेयरहाउस में सर्वेलेंस इक्विपमेंट सेट किया। अरमान ने कहा, ये लाइव ट्रेस है रिहा डट का। उसका फोन कल रात 11 बजे जफर की कंपनी के सबनेट से कनेक्ट हुआ। मरहबा ने मैप पर नुक्ता लगाया, तो इनका जॉइंट मीटिंग पॉइंट यही है। अब वो हमारे रेंज में है। टीवी पर फराज अरशद की आवाज गूंजती है, दुश्मन के हथियार अब बारूद नहीं, डेटा है। अब वो बॉम्ब से नहीं, USB से हमला करता है। ये जंग सॉफ्ट है, मगर उससे भी ज्यादा खतरनाक। रिहा डट NGO ऑफिस में जफर से मिली। फायरवॉल कब खोल रहे हो? जफर ने कहा, जब मेरे खिलाफ अदालत में केस मुकम्मल होगा, उससे पहले तुम्हारे लिए सब कुछ रेडी होगा। रिहा ने कहा, तुम जानते हो हम किसी के नहीं होते। जफर ने आंखें बंद की, इसीलिए मास्क पहनते हैं। GHQ में कर्नल समीर ने हेडसेट पहना। कमांड टू ऑपरेटिव, सर्वेलेंस लॉक एक्टिव, लाइव मॉनिटरिंग इनिशिएटेड, डिसीजन इन मोशन। स्क्रीन सयाह होता है, आवाज गूंजती है। नकाबजदा लोग अब घेरे में आ चुके हैं और वक्त अब इनका नहीं रहा। न कराची के पुराने इलाके में शाम के साए लंबे हो चुके थे। शाहनवाज, एक आम रेड़ीबान, दिन भर की मजदूरी के बाद अपनी टूटी हुई रेड़ी को धकेलता हुआ गली की निकट पर पहुंचा। सामान कम, कर्ज ज्यादा और घर में बीमार माँ। अम्मा, आज आलू सस्ते नहीं हुए, बस 1 किलो लाया हूं। बूढ़ी माँ ने कमजोर हाथ से उसका चेहरा सहलाया। बेटा, तो बस सलामत रहे, बाकी रब देगा। दूसरी तरफ GHQ की स्क्रीन पर लाइव ट्रैकिंग मैप चमक रहा था। कर्नल समीर ने हेडसेट पर कमांड दी। रिहा डट के सिग्नल्स ने शाहनवाज की गली के करीब NGO व्हीकल की लोकेशन दी है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं। अरमान ने कहा, मुमकिन है NGO का जाली रिलीफ प्रोग्राम इस इलाके को इस्तेमाल कर रहा हो। मरहबा अली ने खंजर की धार पर हाथ फेरा। ये वही जगह है जहां दुश्मन खामोशी से मास्क पहने बैठा है और आम आदमी को हथियार बना रहा है। रिहा डट NGO कैंप में दाखिल हुई। बच्चे, औरतें, सब मेडिकल हेल्प की कतार में खड़े थे। एक छोटे बच्चे ने पानी मांगा। रिहा ने झुककर पानी दिया और विस्पर किया, तुम्हारी शक्ल कैमरास को पसंद आएगी, कल प्रेस आएगी, रेडी रहना। साथ खड़ा शाहनवाज का भतीजा उमरान सब सुन रहा था। उसने आकर चचा को बताया, चचा, वो NGO वाली आंटी कुछ अजीब बातें कर रही हैं, सबको प्रेस के लिए तैयार होने को कह रही है। शाहनवाज ने सोच में पड़कर कहा, प्रेस इंसानों के लिए आती है, ना कि तस्वीरों के लिए। कुछ तो गड़बड़ है। जफर ने अपनी कंपनी के डार्क सर्वर पर रिहा को पैगाम भेज, फायरवॉल ब्रीच पॉसिबल, ऑपरेशन विंडो 0 to AM कराची ग्रिड B। खान ने जवाब दिया, disguise complete, civil faces ready, expecting camera and chaos। GHQ ने फौरी जवाब में ऑपरेशन कोड जारी किया, कोड ग्रे, साइलेंट शील्ड एक्टिवेटेड, आर्मन मरहबा ऑन ग्राउंड। कर्नल समीर ने आहिस्ता कहा, सही वक्त आ गया है और अब हम खामोश नहीं रहेंगे।
महिरा FIA हेडक्वार्टर में बैठी थी। इसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, जफर के साथ पहली सालगिरह की। ऑफिसर्स ने कहा, आपकी गवाही जफर के खिलाफ मरकजी शहादत होगी। महिरा की आंखों में आंसू नहीं थे। मैं अब सिर्फ बीवी नहीं, एक शहरी हूं जो जानती है कि सच की कीमत सिर्फ आंसू नहीं, हमत भी मांगती है। टीवी पर फराज आज लाइव बैठा था। शहर की सड़क पर खड़ा हर मजदूर, हर माँ, हर बच्चा अब खुद एक हदफ है। और जब हमला इल्म में ना आए तो हिफाजत का फरीजा सिर्फ फौज का नहीं बल्कि हर उस इंसान का है जो ख्वाब देखता है। रात 2 बजे NGO व्हीकल कराची के ग्रिड B में दाखिल हुई। मरहबा और अरमान छत पर मौजूद थे। विजुअल कंफर्म्ड, रेहा डट इन बरका, जफर्स इंक्रिप्टेड फ्लैश ड्राइव हैंडओवर पॉसिबल। अरमान ने कहा, शाह नवाज की गली के बच्चों को कैमरा बेट बनाया जा रहा है। मरहबा ने जवाब दिया, ये बेट नहीं, ब्लैकमेल मटेरियल है। अब सिर्फ निगरानी नहीं, अब रोकने का वक्त है। स्क्रीन फेड होता है। कर्नल समीर की आवाज गूंजती है, ऑपरेशन का वक्त खत्म, अब दुश्मन की बारी है कि वो संभले या बिखरे। नकाब जदा लोग अब रोशनी की जद में आ चुके हैं। सुबह की अजान के बाद कराची के उसके आसमान पर खामोशी छाई थी। मरहबा अली और अरमान सादिक ने एक चाय खुए पर बैठकर ऑपरेशन की फुटेज रिवाइंड की। रेहा डट की एन्क्रिप्टेड ड्राइव ट्रांसफर रिकॉर्ड कंफर्म हो गया। अरमान ने कहा, हाँ, मगर अहम बात यह है कि ड्राइव रेहा ने जफर को नहीं बल्कि एक छोटे बच्चे के स्कूल बैग में छुपाई है। मरहबा की नजरें संजीदा हो गईं तो दुश्मन बच्चों के हाथ इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ शाह नवाज का भतीजा उमरान स्कूल से वापसी पर वही बैग लेकर घर पहुंचा। चिचा, आज तो वो NGO वाली आंटी ने मुझे अपना प्यारा सिपाही कहा और ये बैग दिया। शाह नवाज ने बैग को खोला। अंदर एक अजीब सा चिप निकला, जैसे मिनी USB। इसके माथे पर शिकन भरी। ये स्कूल के बच्चों को क्यों दे रहे हैं ऐसी चीजें? GHQ में कर्नल समीर ने फाइल बंद की। टाइम टू मूव। जफर की कंपनी हनिया टेक के तमाम सैटेलाइट ऑफिसेज सील किए जा रहे हैं। जफर अब मास्क नहीं बदल सकता। इसका हर लिंक हमारे सामने है। एक जूनियर ऑफिसर ने कहा, सर, NGO अब भी रेहा के लिए कवर प्रोवाइड कर रहा है। कर्नल ने ठहर कर कहा, हमारी खामोशी अब खत्म हो चुकी है, मगर कार्रवाई खामोशी से ही होगी। FIA का फील्ड यूनिट रात की तारीकी में जफर के वेयरहाउस पर छापा मार रहा था। अंधेरे में 2 लोगों की आवाजें सुनाई दें। ये आखिरी कंसाइनमेंट है, ईरान के बॉर्डर से निकलवाना है, इसके बाद सब क्लियर है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, सर्च लाइट ऑन हो गई। FIA, हैंड्स अप! जफर के आदमी बेखबर पकड़े गए। रेहा डट NGO के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंची, चेहरे पर तबसम, हाथ में फाइल। हम पाकिस्तान के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। हमें इल्जामों से नहीं, खिदमत से जवाब देना है। लेकिन ऐन उस वक्त FIA और इंटेलिजेंस यूनिट अंदर दाखिल हुई। मिस रेहा डट, आपके खिलाफ कॉन्क्रीट साइबर इन्फिल्ट्रेशन, एस्पियनाज और चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के सबूत मौजूद हैं। आप अंडर अरेस्ट हैं। रेहा ने धीरे से सर उठाया। तुम जानते नहीं, जो लोग मास्क में आते हैं वो कभी अपना चेहरा नहीं दिखाते। मरहबा पीछे से बोला, मगर हम वो लोग हैं जो मास्क को भी पहचान लेते हैं। महिरा को FIA से कॉल आया, रेहा डट पकड़ी गई है। जफर पर प्रेशर शदीद हो चुका है। आपकी गवाही उसकी आखिरी शिकस्त हो सकती है। महिरा ने आसमान की तरफ देखा। रब जिसे बेनकाब करना चाहे उसे किसी अदालत की जरूरत नहीं, सिर्फ वक्त चाहिए। टीवी पर फराज अरशाद ने खबर पढ़ी, कराची में NGO के नकाब में छुपे स्पाई रिंग का इंकशाफ। रेहा डट गिरफ्तार, जफर का नेटवर्क लपेटे में। अवाम सवाल कर रहे हैं, ये दुश्मन कब से हमारे अंदर मौजूद था और क्यों हमने उसे पहचाना नहीं? एपिसोड के इख्तिताम पर शाहनवाज अपने घर के बाहर बैठा चाय पी रहा था। सामने उमरान साइकिल पर खुशी से घूम रहा था। चचा, वो बैग वापस ले गए, मगर इन्होंने मुझे एक असल वाला स्कूल बैग भी दिया। शाहनवाज ने मुस्कुराकर कहा, असली चीज वही होती है जो सच के साथ हो बेटा। नकली तो बस मास्क होता है जो आखिरकार उतर ही जाता है। नकाब ज़दा लोग
अब हर बलूचिस्तान के इलाके नौशकी में धूल भरी फजा में एक गैर मारूफ स्कूल फ्यूचर माइंड्स पाकिस्तान खामोशी से काम कर रहा था। मरहबा अली ने एनजीओ अहलकार के भीस में अंदरूनी सर्वे शुरू किया। एक क्लास में टीचर बच्चों को बता रहा था, तुम पाकिस्तानी नहीं, तुम्हारी सरजमीन अलग है, तुम्हें आजाद सोचना होगा। मरहबा ने आंखों में संजीदगी भरी, ये तालीम नहीं जहन साजी है। GHU में कर्नल समीर ने सैटेलाइट फुटेज दिखाई। ये स्कूल रॉ की फंडिंग से चल रहा है। अफगान बॉर्डर के करीब 3 मजीद मराकज कंफर्म हुए हैं। अरमान ने कहा, मरहबा अकेला है मगर वक्त इसके साथ है। कराची में शाह नवाज रेडी लगा रहा था। इमरान स्कूल जाने को तैयार था। चचा, अब नया स्कूल अच्छा है, पुरानी NGO वाले तो वापस नहीं आएंगे ना? नहीं बेटा, वो अपना असल चेहरा दिखा चुके हैं। अब तालीम भी पाक होगी। लाहौर में बबार वर्कशॉप में मसरूफ था। एक शख्स आया, तुम्हारे हाथ में कमाल है, रॉ को तुम जैसे लोगों की जरूरत है, एक छोटा सा मॉड करो, बाहर का रास्ता खुल जाएगा। बबार ने कहा, मैं इंजन ठीक करता हूं, वतन नहीं बेचता। इसी रात दरवाजे पर खत फेंका गया, इनकार का मतलब है तुम्हारी मां की दवा बंद। मरहबा ने स्कूल के अंदरूनी सर्वर से डेटा निकाला। हर लेक्चर एन्क्रिप्टेड ऐप के जरिए रिकॉर्ड हो रहा है। मोबाइल ऐप्स के जरिए रेडिकल मटेरियल बच्चों को भेजा जा रहा है। एक मासूम बच्चा बोला, सर ये बातें अम्मी को ना बताऊं ना, वो कहती हैं पाकिस्तान हमारा है। मरहबा ने सर झुकाया, बेटा तुम्हारी मां सच्ची है, पाकिस्तान तुम्हारा है हमेशा से। GHQ में डिसीजन हुआ, कोड वाइट फाल किया जाए, तालीमी इदारों की छानबीन का मुकम्मल ऑपरेशन लॉन्च होगा। कर्नल समीर ने फाइल बंद की। जब दुश्मन कलम को हथियार बना ले तो जवाब भी इल्म से देना होता है। एपिसोड का इख्तिताम, रिहादत जेल में बैठी थी। अफसर ने पूछा, बलूचिस्तान के 3 मराकज का मास्टर माइंड कौन है? रेहा ने हंसते हुए कहा, वो तुम्हारे दरमियान है, तुम्हारे ट्रस्ट में, तुम्हारे इल्म में, तुम्हारे बच्चों के हाथों में। नकाब ज़दा लोग अब दरसगाहों में बेनकाब हो रहे हैं। एपिसोड 9, नकाब ज़दा लोग। बलूचिस्तान की वादियों में सर्दी तेज हो चुकी थी। मरहबा अली ने छापा मार टीम को कॉल दी। तीनों मराकज की लोकेशन कंफर्म हो चुकी है। बच्चे, NGO स्टाफ और डिजिटल डिवाइसेस सब मॉनिटर में हैं, मगर हमले से पहले हमें मुकम्मल सबूत चाहिए। अरमान ने GHQ से जवाब दिया, तुम्हारी लोकेशन पर ड्रोन सर्वेलेंस शुरू हो चुकी है, आवाजें बंद रखो, दुश्मन खामोश है मगर बेदार। मरहबा ने अपने खफिया कैमरे से तस्वीरें लें जहां टीचर बच्चों को एक नई ऐप सिखा रहा था। इस ऐप से तुम किसी से भी बात कर सकते हो, बाहर की दुनिया से, उनसे जो तुम्हें सच दिखाएंगे। एक बच्चा बोला, मगर हमें तो पाकिस्तान से मोहब्बत है। टीचर ने कहा, मोहब्बत अंधी नहीं होनी चाहिए, जो सच बोले वही अपना होता है। मरहबा ने स्लो विस्पर में कहा, ये तुम नहीं, दुश्मन बोल रहा है। इधर लाहौर में बाबर वर्कशॉप के पीछे एक वीरान गोदाम में पहुंचा जहां उसके दोस्त को रॉ के लिंक से नोटिस मिला था। ये लोग तुम्हें बाहर का वीजा दे रहे हैं? दोस्त ने कहा, हाँ, GPS चिप मॉडिफाई करनी है, रकम भी दी है। बबर ने सख्त लहजे में कहा, यह सिर्फ GPS नहीं, ये पाकिस्तान का नक्शा बिगाड़ने की कोशिश है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम किस जुर्म में इस्तेमाल हो चुके हो। दोस्त बोला, और अगर पैसे ना लूं तो घर का चूल्हा बंद हो जाएगा। बबर ने कहा, तो फिर चूल्हे में आग जलाना सीख, मुल्क जला के रोशनी ना बना। कराची में शाह नवाज इमरान को स्कूल छोड़ने गया। रास्ते में मीडिया की गाड़ी आकर रुकी। रिपोर्टर ने सवाल किया, अब जब रिहादत जैसे लोग NGO में निकल रहे हैं तो आप जैसे आम लोग क्या कर सकते हैं? शाह नवाज ने सादा अंदाज में कहा, हम आम लोग नहीं, असल मुहाफिज हैं। हम अगर चुप रहे तो दुश्मन बोलता रहेगा। अब हम भी सवाल करेंगे कि हमारे बच्चों को पढ़ाने कौन आ रहा है। GHQ में कर्नल समीर ने नए डेटा पर ब्रीफ दिया।
FMP यानी फ्यूचर माइंस पाकिस्तान सिर्फ फसेड था। उनकी फंडिंग ईरानियन अकाउंट्स, नेपाली बैंक्स और भारतीय डिजिटल वॉलेट से हुई। उनके मटेरियल्स में पाकिस्तान की फौज, अदलिया और नजरिया के खिलाफ बराह रास्त अल्फाज मौजूद हैं। एक अफसर ने कहा, तो क्या हम हमला शुरू करें? कर्नल ने सर हिलाया, नहीं, अभी नहीं। हम हमला नहीं, बेनकाब करेंगे। हम इन्हें उनकी जबान में शिकस्त देंगे, इल्म और यकीन की जबान में। बलूचिस्तान में रात के सन्नाटे में मरहबा ने रिपोर्ट फाइनल की। NGO बिल्डिंग के अंदर रॉ ऑपरेटिव मौजूद है, डिस्गाइज्ड एज करिकुलम कंसल्टेंट। इसका असल नाम टीरन मल्होत्रा है। अगली सुबह GHQ से मंजूरी मिलते ही कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इसी वक्त स्कूल का दरवाजा खुला और एक बच्चा रोते हुए आया। सर, वो टीचर ने मुझे मारा कि मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों कहा। मरहबा ने बच्चे के आंसू साफ किए। कल तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं, अगले कल वही दुश्मन के लिए आग बनेंगे। मैं वादा करता हूं, तुम्हारी जबान बंद नहीं होगी। उधर बबार ने FIA को रॉ एजेंट के बारे में इतला दी। FIA ने उसे छुपकर निगरानी का काम दिया। अब बबार एक आम मैकेनिक नहीं था, वो दुश्मन के खिलाफ खामोश सिपाही बन चुका था। एपिसोड के इख्तिताम पर रेहा दत्त की जेल सेल में तफ्तीशी अफसर आया। तुम्हारे निजाम ने हार मानी, अफसर ने सिर्फ एक लाइन कही। जब आम लोग बेदार हो जाएं, तो एजेंसियों को खामोशी से जीतने दिया जाता है। नकाब ज़दा लोग अब हर बस्ती में पहचाने जा रहे हैं। तगावजिस्तान के शहर नौशकी की सुनसान रात। मरहबा अली ने मटी झूंपड़ी में बैठकर फेल्ड डायरी में आखिरी एंट्री मुकम्मल की। रॉ का अहम एजेंट टीरन मल्होत्रा कल सुबह 10 बजे बच्चों के साथ प्रेजेंटेशन के बहाने पूरे इलाकाई निसाब में जहर घोलने जा रहा है। हमारी कार्रवाई साइलेंट इंटेल स्वीप होगी। कोई गोली नहीं, सिर्फ सच और सबूत। सुबह के वक्त स्कूल में टीरन बच्चों के सामने मौजूद था। जदीद टैबलेट पर उसने प्रेजेंटेशन ऑन की। आज हम सीखेंगे कि सरहदें इंसान बनाते हैं और तुम्हें खुद सोचना है तुम कहाँ के हो। कभी ये सोचा कि पाकिस्तान तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा है? मरहबा ने अंडरकवर कमरे से सब रिकॉर्ड किया। साथ में लाइव फीड GHQ को मौसूल हो रही थी। GHQ रावलपिंडी। कर्नल समीर ने हेडफोन्स उतारे। बस बहुत हो गया, अब दुश्मन को उसके अल्फाज के जरिए बेनकाब किया जाएगा। अरमान बोला, तैयारी मुकम्मल है। हमने स्कूल के आसपास तमाम बच्चों के वालिदैन को बुलवा लिया है। अब नकाब उतरेगा उनके सामने। इधर बबार ने FIA को इतला दी कि रॉ एजेंट शहर के बाहर गोदाम में ड्रॉप ऑफ की तैयारी कर रहा है। FIA के ऑफिसर ने कहा, तुमने रिस्क लिया, अब ये मुल्क तुम पर फख्र करेगा। बबार ने कहा, मुझे किसी तमगे की नहीं, अपनी माँ की सलामती की जरूरत है। बस ये जंग पूरी हो जाए। नौशकी स्कूल के आंगन में सब वालिदैन बैठे थे। टीरन प्रोजेक्टर ऑन करके प्रेजेंटेशन शुरू करने ही वाला था कि अचानक स्क्रीन पर मरहबा की आवाज गूंजी। ये दरसगाह नहीं, दुश्मन की दरगाह है। ये इल्म नहीं, जहर है। ये उस्ताद नहीं, गदार है। टीरन हक्का बक्का रह गया। GHQ की टीम अंदर दाखिल हुई, हाथ में प्रूफ फिल्ड टैबलेट्स और प्रिंट्स। मरहबा ने हाथ बुलंद करके कहा, यही वो आदमी है जो तुम्हारे बच्चों को आजादी के नाम पर गुलामी सिखा रहा था। एक बाप चीखा। मेरे बच्चे के हाथ में जो टैबलेट था, इसमें पाकिस्तान के खिलाफ बातें थीं। एक माँ बोली, मेरे बेटे ने कभी ये ना कहा कि वो किसी और का है, मगर ये उस्ताद उसे पाकिस्तान दुश्मनी सिखा रहा था। टीरन को मौका पर गिरफ्तार कर लिया गया। GHQ की टीम ने स्कूल को सील किया। मरहबा ने बच्चों से कहा, अब तुम्हें सिखाने वाला वो होगा जो तुम्हें अपने वतन से मोहब्बत करना सिखाएगा, ना कि इससे नफरत। लाहौर में FIA ने रॉ ड्रॉप ऑफ पकड़ लिया। बबार ने खतरा लेकर GPS मॉडिफिकेशन रोका। मिल्क दुश्मनी की पूरी सप्लाई जब्त हुई। अफसर ने हाथ थामकर कहा, तुम मैकेनिक नहीं, महब्बे वतन हो। आखिर में जेल में रेहा दत्त को रॉ से एक खुफिया पैगाम मिला। टीरन कॉम्प्रोमाइज्ड, न्यू नोड नीडेड, कोड नेम आयान। रेहा मुस्कुराई, तो खेल अभी बाकी है।
नकाब ज़दा लोग अब जो बेनकाब हो गए वो दोबारा छप नहीं सकते।